country where agriculture plays a vital role for its development. Here, the crops are worshipped as their lord, and their onset is inaugurated with huge celebrations held across the state. So let's start this event with a lot of enthusiasm, and you all are appreciated to compliment the participants in the in-call messages. As we are celebrating harvest festivals, it is very important to be familiar with the beauty and importance of these festivals. So let's welcome Samriddhi Mittal and Shubham Verma to share about the harvest festivals. Good morning to all present here. I, Samriddhi Mittal, and my fellow Shubham Verma are going to throw a light upon why do we celebrate harvest festivals and what are the various harvest festivals around the world. Harvest festival is celebrated around the time of the main harvest of food crops in a region. Harvest festivals are believed to be the oldest form of festivals around the world. The winter season is coming to an end. It is time to reap the harvest, and so is the time to celebrate. For a country largely dependent on agriculture, harvest becomes one of the most important events across the nation. We thank the nature for providing us a bountiful harvest. Harvest festivals are not just about celebrating the ripe crops, but also an important astronomical change going on in the solar system. They are considered to be the auspicious periods and hence are marked with celebrations and prayers. Due to the differences in climates and kinds of crop, different harvest festivals are celebrated in various regions throughout the year. There are various harvest festivals. Let's have a look at few of them. The first one is Makar Sankranti. It is known by different names in different regions, like Magh Bihu in Assam, Sakrat in Haryana, and Pongal in Tamil Nadu. On this day, the sun god is worshipped along with Lord Vishnu and goddess Lakshmi throughout India. Makar Sankranti marks the first day of sun's movement to Capricorn, known as Makar, which further marks the end of short winter days. This festival is full of colors inside out. People fly kites in the sky, and food is majorly made of sesame seeds like tilke laddu and tilki chikki. The next festival is Vesakhi. It is a spring harvest festival. The first day of Vesak marks the traditional solar new year based on Vikram Samvat calendar. On this day, people thank God for a good harvest and hope to have fruitful crops in the coming season. People gather to socialize and share festive foods. The next festival is Nabana. It is a Bengali harvest celebration famous for paddy plantation. The festival is celebrated with Mela called as Nabana Mela. Several poets, musicians, and painters flock to such mass gatherings. Farmers of Bengal participate joyfully by offering the first grains to Goddess Lakshmi and thanking her for showering her blessings. Next festival is Gudi Padwa. It is a harvest festival of Maharashtra and it marks the beginning of New Year for Marathis and Konkani Hindus. It signifies the arrival of spring and to the reaping of Rabi crops. The festival is linked to the Hindu mythology that God Brahma created time and universe on this day. The spring festival is celebrated by making rangoli, a special Gudi Dwaj, street processions, dancing, and festive foods like puran poli, modak, and rice chakli. Thank you for listening patiently. Now I request Shubham to continue further. Thank you, Samriti. Let us talk about the other harvesting festivals of India. Nuakhai. Nuakhai is an age-old harvest celebration in Odisha. Locally, Nua means new and Khai means food. This is not only popular festival in India, but also celebrated to appreciate the passing away of the past evil days, while welcoming new and beautiful with open arms. The festival is also known as Nuakhai Parab. Next one is Wangla. The festival of Wangla is the merriment of 100 drums played by Gaur tribes of the northeast India. This is one of the popular harvest festivals of India, marking the onset of winter. During this festival,
Sun god is worshipped and immense devotion and zeal. The women wear their traditional colorful clothes and dance during this harvesting festival, while men rhythmically drum their fingers on the traditional drum pad. Next one is Ladakh Harvesting Festival. With having gained a lot of popularity over the past few years, Ladakh Harvest Festival is one of the most happening harvest festival across the country in September. Ladakh turns into a beautifully vibrant city as it covers itself with decorations. From the houses to monasteries and stupas, everything is decorated with the brightest colors. People enjoy freshly brewed beer, and the traditional Ladakhi cuisine is the highlight of the celebration along with traditional dances. Like in India, mostly regions around the world that are involved in agricultural practices celebrate their respective harvest seasons. Some of the countries and their harvest festivals are Thanksgiving, United States, Erntedansfest, Germany, Rice Harvest, Indonesia, Lammas Festival, United Kingdom, Olivegando in Italy, Sukkot, Jerusalem, Chuseok, South Korea, Blessing of the Sea, Greece. Thank you, everyone. That was phenomenal, Samriti and Shubham. Thank you, Priyanka, for your contribution in the PPT as well. We surely got new definitions for the celebration of these festivals across the different states of India and across different countries as well. Now, we have Arya who will be presenting a dance performance. Let's give a huge round of applause for Arya. Mesmerizing performance, Arya. This kind of enthusiasm and energy is what is required for the celebration of festivals. I guess we all will agree on this fact. Now we have Deepika for presenting an illustration.
Wow, that was so eye catching, Deepika. Your illustrations were really a blessing to our eyes. Now we have Shalvi to give a speech on Magha Saji. नमस्कार, मैं शाल्वी शंकर सभ्यता सदन की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आप सबको माघा साजी, जिसे मकर संक्रांति भी कहते हैं, उसका महत्व एवं उसकी विशेषताएं बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आए। मकर संक्रांति या माघा साजी भारत का एक प्रमुख पर्व है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, तब इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति या माघा साजी पूरे भारत व नेपाल में मनाया जाता है तथा कई अनेकों देशों जैसे बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया व श्रीलंका में भी मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति या माघा साजी विभिन्न रूपों में मनाया जाता है व विभिन्न प्रांतों में इस त्योहार को मनाने के जितने अधिक रूप प्रचलित हैं, उतने किसी अन्य पर्व में नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्रांतों एवं वहां मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के बारे में। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में जो कि वर्तमान में प्रयागराज कहलाते हैं, में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रत्येक 1 वर्ष तक माघ मेले का आयोजन होता है। 14 जनवरी से ही इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक के समय को खर मास के नाम से जाना जाता है। ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति या माघा साजी के दिन से ही पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। बिहार। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, गुड़, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्रों आदि का दान करने का महत्व है। तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाते हैं। प्रथम दिन भोगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल अथवा केनु पोंगल और चौथे व अंतिम दिन कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा करके जलाया जाता है। दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन पशु धन की पूजा की जाती है एवं अंतिम दिन कन्या की पूजन करके मनाया जाता है। असम। असम में मकर संक्रांति बिहू अथवा भोगाली पोंगल के नाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल, नमक आदि चीजों को अन्य सुहागनों को दान करती हैं। तिल गुड़ नामक हलवे के बांटने की प्रथा भी है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते समय बोलते हैं, तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, अर्थात तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। इस दिन महिलाएं आपस में तिल गुड़, रोली, हल्दी बांटती हैं। मकर संक्रांति का महत्व। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृतकं बलम सा भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकल्पों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जैसा कि पहले श्लोक में स्पष्ट है।
मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर्व पर तीर्थराज एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। समानतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु मकर राशि में सूर्य के प्रवेश को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक माना जाता है और इसे मनाया जाता है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर स्वयं जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन मकर संक्रांति या माघा साजी के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर से जा मिली थी। मकर संक्रांति के नए पैमाने। अन्य त्योहारों की तरह इस त्योहार पर भी छोटे छोटे मोबाइल के संदेश भेजे जाते हैं। इसके अलावा सुंदर व आकर्षक बधाई कार्ड भेजने की परंपरा आजकल प्रभावित होने लगी है। मकर संक्रांति की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पतंग का सहारा लिया जाता है। आइए इस प्रस्तुति का समापन एक वीडियो द्वारा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। Thank you, Shalvi, for the information of Magha Saji. I think every festival is incomplete without knowing the history behind it and the customs associated with it, right? So now let's welcome Garima and Dishant, who will be presenting a song for us. जदों आंदे लोड़ी बड़ा जी लांदे लोड़ी जदों आंदे लोड़ी बड़ा जी लांदे लोड़ी पैर पर हवा की लोड़ तेरा दिया सारी लोड़ी पैर पर हवा की लोड़ तेरा दिया सारी लोड़ी जदों आंदे लोड़ी बड़ा जी लांदे लोड़ी जदों आंदे लोड़ी बड़ा जी लांदे लोड़ी खुशियाँ दिलाते चमन बनाते ठंडी ठंडी लगती है लाड मलारा की लोड़ी मोहब्बतों प्यारा की लोड़ी लाड मलारा की लोड़ी मोहब्बतों प्यारा की लोड़ी लोड़ी से कन दे सानो नजर पर देखण दे सानो लोड़ी से कन दे सानो नजर पर देखण दे सानो जदों आंदे लोड़ी तेरा दारा में लोड़ी जदों आंदे लोड़ी तेरा दारा में लोड़ी ओ मंगे अमरादाने ओ मंगे अमरादाने साडा परदेसी आदा सरमाया ही आधा रे साडा परदेसी आदा सरमाया ही आधा रे
जद माया गानंदे जद माया गानंदे जद जिथे जी करदा पंजाब बना लेंदे जद जिथे जी करदा पंजाब Thank you so much, Garima and Dishan. Those beats really made me dance as well. And I am very sure that we all really enjoyed your performance. Now, let's get ready for another dance performance by Akshita. मन के सर महके रेशम लागे रे फिर चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे सुनो कनमनी सुनो कनमनी शहनाई सी बाजे सावन सावन तेरी आँख में बादल से खबरे खनक खनक गई हंसी हंसी तेरी कलम 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 पूरी आधी आधी That was amazing, Akshita. Thank you so much. And I think our every house activity is incomplete without your graceful performance. Now we have a group performance for informing us about Sugi Habba and Bihu. So let's welcome them with a huge round of applause. भारत एक प्राचीन, धार्मिक और समृद्धशाली सांस्कृतिक देश है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत की आत्मा में प्रकृति है और वन वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए अपार श्रद्धा है, क्योंकि इनका सरोकार सीधा हम इंसानों से ही तो है। इसीलिए हमारे रीति रिवाजों में तमाम ऐसी परंपराएं और त्योहार हैं जो हमें सीधे प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ते हैं। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने हमारे पर्वों और त्योहारों की रचना ऐसे की है कि ये हमारे जीवन में रंग, हर्षोल्लास के साथ हमारे जीवन के मूल्यों की भी रक्षा करते हैं। नमस्कार, मैं अवंतिका सचिता हाउस की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से फसलों संबंधित त्योहारों के बारे में। आइए देखते हैं मेरे कुछ साथी जो देश की दो अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं, असम और कर्नाटका, वो अपने त्योहार को कैसे मनाते हैं। आज मैं प्राची और मेरा दोस्त प्रशांत अपने दो दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। मैं और प्रशांत असम से बिलोंग करते हैं
और हमारे 2 दोस्त प्रयाग और नेहा कर्नाटका से। आज हम उन्हें अपने आसाम के बिहू के त्योहार के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे और उनसे कुछ उनके त्योहार के बारे में जानेंगे। हेलो प्रयाग, आ जाओ मैं तुम्हें बिहू के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। क्या तुम जानते हो? बिहू भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेष रूप से असम में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह असम में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह भारत के राज्य असम में 3 महत्वपूर्ण त्योहारों का एक समूह भी है। क्या तुम इनके नाम जानना चाहोगे? पहला नाम रोंगली बिहू या बोहाग बिहू, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। दूसरा कोंगली बिहू या काटी बिहू, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है। तीसरा भोगली बिहू या माघ बिहू, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। बिहू शब्द का प्रयोग बिहू डांस के लिए भी किया जाता है, जिसे बिहू नाच कहते हैं, और बिहू सॉन्ग को बिहू गीत के रूप में भी जानते हैं। और यह त्योहार फसल कटाई से जुड़ा है। यह त्योहार वसंत के आगमन और सर्दियों की वापसी का एक प्रतीक है। इसमें तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, घरों को पूरी तरह साफ किया जाता है, साथ ही लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक संगीत पर नाचते भी हैं। अच्छा, पता है हमारे वहां भी एक त्योहार मनाया जाता है, सुग्गी हब्बा, जो भी किसानी का ही त्योहार है। ये हमारे साल का पहला त्योहार होता है, जिसमें हम धरती की पूजा करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं हमें खाना और खाद्य पदार्थ देने के लिए। और यहाँ सूर्य की पूजा भी होती है। जैसे सूर्य का मतलब मकर होता है, तो इसलिए हम इसे मकर संक्रमा भी कहते हैं। मकर संक्रमा नाम से और राज्यों में भी जाना जाता है इसे। और पता है, अगर हम ज्योतिषी के अनुसार देखें तो यह उत्तरायण की शुरुआत होती है, मतलब सूरज का 6 महीनों के लिए दक्षिण की तरफ चले जाना। और इसी दिन से मकर राशि में भी सूर्य प्रवेश करता है। और कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि सर्दियों का अंत और बड़े दिनों की शुरुआत भी आज ही से होती है। और इस दिन सब अपने अपने घरों को साफ करते हैं, सफेदी करवाते हैं, और सुबह सुबह तेल से स्नान करके और नए नए कपड़े पहनकर अपने सगे संबंधियों को सुग्गी हब्बा की बधाई देते हैं। आओ नेहा, मैं तुम्हें बिहू के कुछ कॉस्ट्यूम्स के बारे में बताती हूँ। ट्रेडिशनल वेशभूषा के बिना कोई भी लोक नृत्य अधूरा है। लोक नृत्य की पहचान ही होती है वहाँ का एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। हर किसी का अपना महत्व होता है। यही वेशभूषा उस नृत्य में जान डाल देता है। बिहू करते समय भी इसी तरह की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती है, जो असम के कल्चर को दर्शाती है। अरे वाह प्राची, हमारे कर्नाटक में भी सुग्गी हब्बा के मौके पर सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, पर खास तौर पर जो डांसर्स होते हैं उनकी वेशभूषा देखने लायक होती है, क्योंकि वह बहुत ही लुभावनी होती है। इसमें डांसर्स एक पगड़ी पहनते हैं जो अलग अलग रंगों और आभूषणों से सजी होती है, और यह डांसर्स एक लकड़ी के बने छोटे छोटे पक्षियों के साथ साथ पेड़ से बने मोर के पंख भी पहनते हैं, जो देखने में बहुत ही मनमोहक होते हैं। यहाँ भी नृत्य करते समय जो कपड़े पहने जाते हैं वह साधारण कॉटन से बने होते हैं। खुले खुले पहने जाते हैं, जिससे नृत्य करते समय कोई बाधा ना आए। औरतें बहुत ही सुंदर ड्रेस, जिसे मेखाला कहते हैं, उसे कमर की तरफ बांधती हैं, और साथ ही साथ चद्दर, जिसे ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, उनकी शोभा को और बढ़ाता है। कपड़ों की बनावट बहुत सुंदर होती है। मेखाला और चद्दर दोनों ही सुंदर चमकदार रंगों से सजे होते हैं। उन पर पेड़, पक्षी, पुष्प, जानवर, इन सभी की छवि बनी होती है, जो आसपास प्रकृति से मेल खाती है। महिलाएं इस रूप को और सुंदर बनाने के लिए इसके साथ श्रृंगार करती हैं, फूलों से, रंगों से, और सुंदर सुंदर गहने पहनती हैं, और इस नृत्य को और सुशोभित करती हैं। बहुत अच्छे प्राची। प्राची, ये सब देखने में तो कितना सुंदर लगता होगा ना। बहुत। हमारे यहाँ पे भी डांसर जो पगड़ी पहनते हैं वो ज्यादातर लाल, हरे, पीले और सफेद रंग की होती है, जो कि नेचर से जुड़े रंग माने जाते हैं। और सुग्गी डांस करते समय भी जो पुरुष पोशाक पहनते हैं वो सबसे ज्यादा आकर्षित होती है, क्योंकि उनकी पोशाकें बहुत चमकीली होती है। यहाँ भी पुरुषों की धोती और गमछा बहुत ही लुभावना होता है, जिनका रंग और मार्किंग्स महिलाओं के कपड़ों के साथ मेल खाता है। धोती को कमर पे बांधा जाता है और गमछे को सिर पे, कभी कभी गमछे को कमर पे भी बांधा जाता है। ये भी चमकीले रंग के होते हैं, प्रकृति से मेल खाते हैं, और
माहौल बहुत सुंदर और खुशबुओं से भरा होता है। अच्छा प्रयाग, पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम हमारे बिहू के रस्म रिवाज के बारे में जानते हो? कोई बात नहीं, अगर नहीं नहीं जानते प्रशांत, तो बल्कि हम मैं जानना जरूर चाहूंगा। बिल्कुल, तो हम खड़े हैं यहाँ आपको यही बताने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा जरा। माघ बिहू से एक रात पहले उरुका मनाया जाता है। इस समय पुरुष खेतों में जाते हैं और एक अस्थाई झोपड़ी का निर्माण करते हैं, जो कि भेलाघोर फसल के खेतों की घास और अलवा मतलब मेजी के साथ बनता है। और यह अगले दिन लोग मेजी के पास इकट्ठा होते हैं, पीठा और अन्य खाद्य पदार्थें फेंकते हैं और जलाते भी हैं। और इसी के साथ बिहू का त्योहार एक दिन नहीं बल्कि 7 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें हर दिन का अपना महत्व होता है। वह 7 दिनों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा प्रयाग जी। पहला नाम छोटी बिहू, दूसरा नाम गोरू बिहू, तीसरा नाम मनु बिहू, चौथा नाम कुटुम्ब बिहू, पांचवा नाम स्नेही बिहू, छठा नाम मेला बिहू और आखिरी नाम चेरा बिहू। इन दिनों में लोग सुबह जल्दी उठकर कच्ची हल्दी और उड़द के दाल लगाकर नहा लेते हैं और इसके बाद ही अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जिसे धोती, गामोसा और सादर मेलखा भी कहा जाता है। इसके साथ ही लोग बिहू का त्योहार लोक गीत गाते हैं, नाचते झूमते खुशियां बांटते हैं और वे आशीर्वाद के लिए भगवान और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त भी करते हैं। अच्छी फसल, सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमें आप ये बताइए कि सुग्गी हब्बा के रस्म और रिवाज क्या है? हम भी नहीं जानते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं। और जैसे बिहू में बहुत अच्छा अच्छा रिवाज है, वैसे ही हमारे सुग्गिया में भी बहुत नए नए रिवाज है। जैसे हमारा एक रिवाज होता है इल्लू बिरुदु। तो इसमें जो घर की लड़कियां होती हैं वो नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर एक थाली सजाती हैं, जिसमें वो एल्लू बेला, अगर आपको एल्लू बेला ना पता हो तो, जिसे तिल के लड्डू वे कहते हैं। तो एल्लू बेला तिल, गुड़ और नारियल से मिलकर बनता है। फिर उसमें हम रखते हैं सकारे आचू, जिसे हम आम भाषा में मीठी गोलियां या शुगर कैंडी भी कहते हैं। फिर हम उसमें रखते हैं गन्ने, और फिर ऐसे पूरी एक थाली सजाकर और सगे संबंधियों को, आस पड़ोस में, और फिर सबको खिलाकर आते हैं एल्लू बेला। और फिर जब हम बड़ों को ये एल्लू बेला खिलाते हैं तो बड़े हमें आशीर्वाद के तौर पे कहते हैं कि एल्लू बेला तिंडो ओल्ले मातीडी। इसका मतलब होता है कि लड्डू खाओ और लड्डू की तरह ही मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोलो। और पता है, ये त्योहार बस हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए और हर किसी के लिए होता है। जैसे हमारे यहाँ एक त्योहार होता है हायू सुवुडू, किचिची हायू सुवुडू। और इसमें हम जो हमारे पशु होते हैं जैसे कि गाय और बैल, उनको बहुत अच्छा अच्छा सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, रंग बिरंगे पहनाते हैं। और फिर उसके बाद उनको एक बड़े मैदान में और एक ग्राउंड पे सबको एक झुंड में चलाया जाता है, जिसपे देखने का उस माहौल में एक अलग ही आनंद होता है। और फिर उसके बाद उन सभी गाय और बैलों को एक आग के ऊपर से गुजारा जाता है, ताकि उतनी उनकी इतनी सुंदरता पे किसी की नजर लगी हो तो वो ठीक हो सके। और उसी तरह फिर कुछ लोग घर जाकर भी अपने बच्चों की नजर उतारते हैं, जिसके उनके अपने अपने घरेलू तरीके होते हैं, जैसे यलची फल से या एल्लू बेला से। और फिर एक हमारा त्योहार आता है यलची कई। ये खासकर उनके लिए होता है जो नई विवाहित कन्या होती हैं। तो जो नई विवाहित कन्या होती हैं वो आज ही के दिन अगले 5 साल तक जो विवाहित औरतें हैं उन्हें केले और लाल बेर देती हैं, और फिर उन सबके साथ मिलके पतंग उड़ाती हैं और लाल बेर खाती हैं, रंगोलियां बनाती हैं और सारे परिवार के साथ मिलकर बहुत आनंद लेती हैं। और फिर आज ही के दिन कुछ लोग गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जैसी हमारी पवित्र नदियों में स्नान के लिए भी जाते हैं।
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳಕ ತಂತು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳಕ ತಂತು. ಭೂತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಸಿರೋ ಹಸಿರು, ನಗುತ್ತಾ ಹಾಡೋಣ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಳುಕುತ್ತ ತುಳುಕುವ ಈ ರಾಶಿ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ, ನಗುತ್ತಾ ಹಾಡೋಣ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಳುಕುತ್ತ ತುಳುಕುವ ರಾಶಿ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ, ನಗುತ್ತಾ ಹಾಡೋಣ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಳುಕುತ್ತ ತುಳುಕುವ राशि तेरी। नेहा, जैसा तुमने देखा बिहू का डांस कितना सुंदर होता है। आओ मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताती हूँ। जैसे भारतवर्ष में लोक नृत्यों की कोई कमी नहीं है, उसी तरह हमारे बिहू में भी हमारे असम में भी बिहू को बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। हर एक नृत्य की अपनी अलग महत्वता होती है। यह नई फसल के कटने के अवसर पर किया जाता है, बसंत ऋतु का स्वागत किया जाता है और जोर शोर से इस त्योहार को मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा प्राची, भारत में लोक नृत्यों की कोई कमी नहीं है। सुग्गी हब्बा के मौके पर भी एक पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसे आमतौर पर सुग्गी डांस कहा जाता है, जो कि प्रकृति से जुड़ा एक सामर्थ्य सादृश्य माना जाता है। इसे सुग्गी कुनीता भी कहा जाता है, जिसे डांस ऑफ कर्नाटका भी कह सकती है। सुग्गी कुनीता एक ऐसा डांस है जो फसल की कटाई के समय पर परफॉर्म किया जाता है और इसे आमतौर पर सुग्गी डांस कहा जाता है, जो कि वहाँ की एक हालाकी ट्राइब द्वारा पेश किया जाता है। बहुत सुंदर। यहाँ बिहू भी ऊर्जा से भरा नृत्य है। तेजी से हाथों पैरों की सटीक मुद्राओं से किया जाता है। शरीर अपने आप ऊर्जा भरे गीतों की ताल पर झूम उठता है। वैसे तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस नृत्य में हिस्सा लेते हैं, पर कई बार पुरुष कुछ वाद्य यंत्र जैसे ढोल, पेपा, बांसुरी बजाते हैं और महिलाएं उसकी धुन पर घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। सुनकर ही एनर्जी आ गई प्राची। जैसे मैंने बताया सुग्गी कुनीता के बारे में, यह डांस एक ग्रुप में किया जाता है जिसमें 12 से 14 डांसर्स ढोल पे डांस करते हैं और डांस करते करते वो अलग अलग गाँव में जाते हैं, जहाँ वे अनाज और नकदी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वे पूरे समय नाचते और गाते रहते हैं। और डांस शुरू होने से ठीक पहले ढोल बजाने वाला बहुत ही एक्साइटेड होता है और वो ढोल को तेजी से पीटकर गर्म करके डांसर्स की तीव्रता को बढ़ाता है। और यह सुनकर डांसर्स जो होते हैं वो अपने पैरों में बंधी पायल को झंझनाते हुए इकट्ठे होते हैं और इसके बाद अलग अलग तरह की धुनें और संगीत रूप बजाए जाते हैं, जिन पर डांसर्स लगातार डांस करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर। वाद्य यंत्रों की तो कमी यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर अलग अलग वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है, जैसे ताल, पेपा, टोका, गोगोना, बानी, ढोल, बांसुरी व जूतुली। इनमें से किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। हर एक का अपना अलग महत्व है। महिलाएं घेरा बनाती हैं, अपने हाथों को कमर पर रखती हैं, जिससे हथेलियां बाहर की तरफ हो और शरीर थोड़ा आगे की ओर झुकाकर मधुर गाने की धुन पर नृत्य करती हैं। अरे प्राची, बिहू डांस के बारे में सुनकर मेरा भी मन डांस करने को करने लगा। पर जैसा कि मैंने अभी बताया सुग्गी डांस के बारे में, इसमें जो डांसर्स होते हैं वो विशिष्ट दिनों के लिए डांस करते रहते हैं और आखिरी दिन पूरे दिन डांस करते रहते हैं। और अधिकांश ढोल वादक उस लम्हे को जीवंत बनाने के लिए जोर जोर से जाप करते हैं। और इस डांस में उपयोग किए जाने वाले डांस स्टेप्स को समुद्र की लहरों से भी कंपेयर किया जाता है। और इस डांस की शुरुआत जरूर धीमी होती है, पर उनकी गतिशीलता में तेजी होती जाती है धीरे धीरे। और फिर उनके डांस स्टेप्स को प्रकृति के अलग अलग भागों को भी दर्शाया जाता है और इन्हीं डांस स्टेप्स के साथ डांस की समाप्ति होती है। और इस डांस में इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत और गीतों की तुलना हिंदू पौराणिक कथाओं से भी की जाती है। मन मुग्ध हो गया। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी डांस करूं।
एक पारंपरिक बिहू नृत्य को भी मन को वश में कर लेने वाला होता है। प्रकृति के, भगवानों के प्रेम के गीत गाए जाते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सब झूमकर गाते हैं, नाचते हैं और अपनी नई फसल का स्वागत करते हैं। नेहा, अब मैं तुम्हें नेहा और प्रयाग दोनों, अब मैं तुम दोनों को हमारी बिहू की एक मधुर कविता की झलक दिखाती हूँ। Spring has arrived and Bohag beckons. Parents await their homeward sons. The cuckoo sings and Kopo blooms. Dancers dance to the Bihu tunes. Chirapita Laru, homemade delicacies. Muga Makela, pride of ladies. Dhol Pepa Gogona, rendition by Husoru. Merriment fills the aura. Aha, spirit of Bihu. Aha, spirit of Bihu. Thank you. चलो अब पेट पूजा की कुछ बातें की जाएं। भारत में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है वहाँ का खाना। खाने से उस जगह की संस्कृति व रहन सहन का पता चलता है। हमारे असम में भी बिहू के दौरान अनेकों व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनमें हरी सब्जियां, मिठाइयाँ और मछली शामिल है। उन्हीं में से सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है मसूर तेंगा, और हम इसे ट्रेडिशनल फिश करी भी कह सकते हैं। इसमें रोहू मछली को सरसों के तेल में डीप फ्राई करके ग्रेवी के साथ परोसा जाता है, और इसकी ग्रेवी में फेंग्रिक सीड्स, ग्रीन चिलीज और टमेटोज होते हैं। हाँ प्राची, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी त्योहार में सबसे महत्वपूर्ण होता है खाना, यानी कि व्यंजन। वैसे ही हर त्योहार की तरह सुग्गी हब्बा में भी अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें से हमारे यहाँ सबसे पहले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि तिल, गुड़, मूंगफली और घी से बनाए जाते हैं, जो खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं और इन्हें बनाना भी उतना ही आसान होता है, और ये सबको पसंद आते हैं। और इसी के साथ साथ एक और व्यंजन है जिसे हमारे यहाँ पे चकरा पोंगली कहते हैं। इसे हम एक ट्रेडिशनल रेसिपी भी कह सकते हैं, जो कि चावल, गुड़, दूध, ड्राई फ्रूट और घिसे हुए नारियल से बनाई जाती है, जो देखने में तो सुंदर होती ही है, उसी के साथ साथ खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। यहाँ एक और स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे बड़े से लेकर बच्चे तक सब बहुत शौक से खाते हैं। इसे कहते हैं लारू, या हम आम भाषा में लड्डू भी कह सकते हैं। इसे तिल, राइस पाउडर और कोकोनट पाउडर से मिलाकर बनाया जाता है। ये हल्का मीठा होता है। हमारे असम की ये विशेषता है कि यहाँ पर तेज तीखे मसालों का इस्तेमाल नहीं होता। बहुत हल्के, कभी कभी मसाले इस्तेमाल होते हैं। जनरली मीठा बनाया जाता है। लारू, अरे वाह! हमारे यहाँ पे भी तिल और गुड़ से बनी एक और रेसिपी है, जो कि सुग्गी हब्बा में मीठे का एक आदर्श विकल्प मानी जाती है। इसे हम तिल चिक्की कहते हैं, जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, और साथ ही साथ हमारे शरीर को इस सर्दी के मौसम में गर्म रखने में भी बहुत मदद करती है। गुड़ का तो अपना महत्व है, ये कौन नहीं जानता। नेहा, तुमने तिल पिठा के बारे में सुना है? ये बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे भी 3 चीजों से मिलकर बनाया जाता है, जैसे राइस फ्लोर, तिल और गुड़। ये बहुत मीठा होता है। इन सबको साथ में मिलाकर बनाया जाता है। हल्की सी शक्कर भी मिलाई जाती है, फिर सब मिलकर इसका आनंद लेते हैं। अब तो मेरा भी मन तिल पिठा खाने का हो गया प्राची। अच्छा, आपने कभी इमली चावल खाए हैं? नहीं। प्राची, इसे आमतौर पे टैमरिन पुलियोगरे कहा जाता है, जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही मशहूर व्यंजन है, जिसका सबसे अच्छा आनंद पापड़ और रायते के साथ लिया जाता है। ये झटपट बनकर तैयार होने वाली रेसिपी सुग्गी हब्बा के मौके पर मेहमानों को दोपहर में लंच में परोसी जाती है। और प्राची, एक और रेसिपी है जो सुग्गी हब्बा के मौके पर बनाई जाती है, जो कि नाश्ते में परोसी जाती है। साबूदाना वड़ा, जो कि एक स्वादिष्ट व्यंजन है। साबूदाना वड़ा साबूदाना, मूंगफली, आलू, मसालों जैसे साधारण सामग्री से बनाई जाती है। इसे हम चाय या कॉफी के साथ भी खा सकते हैं। तो प्राची, सुग्गी हब्बा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो सुनकर ही भूख लग गई। मैं जरूर आना चाहूंगी कर्नाटका और ये सब चीजें खाना चाहूंगी। बिल्कुल।
आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। हमारी तरफ से आप सभी को बीहू और सुगी हब्बा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you, Avantika, Nishchil, Neha, Prashant, Prayag, Prachi, and Gaurav for shedding a light on the beauty of these festivals. Your conversations were really informative and the presentation was very musical. Now we have Vishnu with a speech on Uttarayan. नमस्कार। मूंगफली की खुशबू और गुड़ की मिठास, दिलों में खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको संक्रांति का त्योहार। आप सभी को मकर संक्रांति की अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मेरे साथियों ने आप सभी को इस फसल के त्योहार मकर संक्रांति के पर्व से अवगत कराया है तथा यह बताया है कि इसे अनेक नामों से जाना जाता है। उन्हीं अनेक नामों में से मैं आपके साथ उत्तरायण का परिचय, महत्व इत्यादि साझा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को उत्तरायण की जानकारी रोचक लगेगी। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े हुए कई बृहद त्योहार मनाए जाने की परंपरा है। इन्हीं त्योहारों में उत्तरायण भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन से सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण दिशा में चलना आरंभ कर देते हैं तथा इसे शुभ काल माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण की महिमा के बारे में बताया है। आइए जानते हैं उत्तरायण का अर्थ, महत्व तथा विष्णु पितामह से जुड़ा किस्सा। सूर्य की दो स्थितियां होती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है तो इसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण के दौरान दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। इसके अलावा जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर कर्क राशि से धनु राशि तक का भ्रमण करता है तो इसे दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन में रात बड़ी होती है और दिन छोटा। उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों की अवधि 6-6 माह की होती है। उत्तरायण का आइए इसका महत्व जानते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण को प्रकाश का समय माना गया है और इसे देवताओं का समय कहा जाता है। इस समय देवताओं की शक्तियां काफी बढ़ जाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति उत्तरायण के दौरान दिन के उजाले में और शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्यागता है उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि महाभारत काल के भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब उन्हें अर्जुन ने बाणों से छलनी कर दिया था तब सूर्य दक्षिणायन में थे। तब पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे रहकर उत्तरायण का इंतजार किया था तथा जब सूर्य राशि परिवर्तन करके उत्तरायण हुए तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। हालांकि वैज्ञानिक रूप से उत्तरायण का प्रारंभ 22 दिसंबर के बाद होता है। 22 दिसंबर की दोपहर को सूर्यदेव मकर रेखा के बिल्कुल ऊपर होते हैं। मकर रेखा सूर्यदेव की दक्षिण की लक्ष्मण रेखा है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसके अगले दिन से धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उत्तरायण की शुरुआत हो जाती है। यह क्रम 21 जून को समाप्त होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और यह उत्तरायण का आखिरी दिन होता है। इसके बाद दक्षिणायन की शुरुआत हो जाती है। इस तरह देखा जाए तो जब सूर्य उत्तरायण मकर संक्रांति से नहीं 22 दिसंबर के बाद ही हो जाता है और मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य उत्तरायण के बाद ही हो जाता है। दोस्तों, उत्तरायण गुजरात राज्य में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुजरात राज्य हर साल उत्तरायण के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का बड़े स्तर पर आयोजन करता है।
इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए भारत के दूसरे राज्यों सहित कई देशों के लोग आते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पतंगबाजी का भी मुकाबला रखा जाता है जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग गुजरात राज्य जाते हैं। वहीं गुजरात राज्य में इस दिन को लेकर खास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है और कई दिन पहले ही राज्य में कई तरह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। यहाँ की दुकानों में आपको कई तरह की पतंगों का दृश्य देखने को मिलेगा। इस महोत्सव के दिन आसमान पूरी तरह से रंगीन हो जाता है तथा रात में भी कैंडल पतंग उत्तरायण की रात का संदेश देती है, तारों के बीच झिलमिलाती है। यही तो है भारतीय पर्व का स्वरूप, जो यह संदेश देता है कि आनंद के पल एक होकर एक साथ बिताएं। दोस्तों, मैं पतंग पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं। चलो फिर बच्चा बन जाएं, चलो फिर बच्चा बन जाएं, आसमान में पतंग उड़ाएं, पेंच लगाएं ख्यालों की, पेंच लगाएं ख्यालों की, ढील दे उड़ानों को, ढील दे उड़ानों को, काट कर अभियान सारे, काट कर अभियान सारे, जोर से कई पोचे चिल्लाएं, जोर से कई पोचे चिल्लाएं, दौड़ में पिरोकर गिरे हैं, दौड़ में पिरोकर गिरे हैं, नए पुराने रिश्ते बनाए। इस उत्तरायण खुद के साथ चलो फिर बच्चा बन जाए, चलो फिर बच्चा बन जाए। मित्रों, एक पतंग हमें बड़ी सीख दे जाती है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। बस जिंदगी भी हमसे यही चाहती है, जिंदगी भी हमसे यही चाहती है। जैसे बस पतंग जब उड़ती है, जब आसमान की ऊंचाइयां छूने जाती है तो उसको हटाने कई पतंगे और आती हैं। इसी तरह जिंदगी है, जब भी आप नई नई ऊंचाइयां छोड़ोगे तो आपको गिराने कई लोग आएंगे, लेकिन आपको उनसे हार ना मानकर आगे बढ़ते जाना है और नई ऊंचाई को छूना है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी वीडियो की प्रस्तुति करके आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। उत्तरायण धरती का उत्सव, आसमान के सम्मान। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की उपासना में लोग पतंगों के रूप में फूलों का अर्पण कर रहे हैं। ये त्योहार, इसमें खुशबू है पतंगों की, आसमान छूती उमंगों की, खुशबू है गुजरात की। यहाँ त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। Thank you, Vishnu, for the information and as well as for motivating us. I would also like to thank Swati for her contribution in the PPT. Now, we will be playing a quiz presented by Indrajit. I request everyone to actively participate in this to make the event more interesting. Over to you, Indrajit. Yes, good morning to you all. Am I visible? No, Indrajit. Yes, You're not maybe visible. it takes some little time. Give me 2 seconds. Yes, I'm audible. The link of the quiz is given in the income message. Please join via the link. Okay. And yes, 6 participant is there. Join, hurry up. Meanwhile, you are joining. Just I am recalling the guideline for the quiz. There are 10 MCQ questions, which has only one correct answer. You have only 20 seconds to answer these questions, right?
and at last the scorecard is visible on your screen, right? Indrajit, you can present Uh, your screen and show as well. okay, ma'am. Okay, कहाँ ma'am. Now आता I है? can do it. Yes. Vishnu, please mute yourself. My screen is visible, right? Is my screen is visible? No, Indrajit. No, Indrajit. Oh, 35 students joined now. So give me some seconds. Maybe it works. Network issue. Let me represent again. Yes. But I cancel it. Yeah, now we can see your screen. But I cancel it because of the network fluctuation. Yes, you can. My screen is visible. Makar Sankranti quiz. Yes, yes, Indrajit. Screen is visible. 42 students are joined. Oh my God. Maybe some network issue facing myself. Indrajit, your screen is visible. It's visible. Okay. Yes. Yes, we can see the quiz. Yes. 42 students are Akshita. Yes. Is it visible? Yes. Yes, Indrajit, Indrajit. just play start. Okay, so that others can see that. Okay. And show full. Indrajit, just show the screen. Yes, ma'am. I'm saying full question view. You are having chart view. Okay, Yes. ma'am. Okay, ma'am. Full question wave. Yes, ma'am. Cancel it and go to the next. Yes. Next. Yes, ma'am. This is for those only who are not participating in the game. They can write their answer in the Okay, install ma'am. messages. Okay, ma'am. Ma'am, questions are visible. Yes.
5, 4, 3, 2, and 1. Indrajit, you may please respond to the answers of the students, those who are writing in the in-call messages. If you can see the screen. No, ma'am. I only see the game quiz screen because Okay. I'm only single device connected. Okay, in Tamil Nadu, Pongal is celebrated as Dash Harvest Festival. 4 days, 1 day, 2 day, and 3 day event. What is the correct answer? Pongal is celebrated in Tamil Nadu for how many days? 4 day, 1 day, 3 day. You have to select only one answer. 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is 4 days. Next question. In Tamil Nadu, Pongal is celebrated to a dash harvest festival. Sorry, this is previous question. Now, next question is on your screen. Which Mela is observed in West Bengal during Makar Sankranti? Pushkar Mela, Magh Mela, Sonpur Mela, Ganga Sagar Mela. You have to select one answer. वेस्ट बंगाल में कौन सा मेला मनाया जाता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में? 4, 3, 2, 1. The correct answer is गंगा सागर मेला. वेस्ट बंगाल में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गंगा सागर मेला मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. This is the third last question. We have only 10 questions, right? Next question is on your screen. Yes. Which game is during Makar Sankranti? Guys, this is simple. Cards, kite flying, खो-खो, गोटी. मकर संक्रांति के दौरान को बहुत पॉपुलरली खेला जाता है. कार्ड्स, kite flying, खो-खो, गोटी. Only one correct answer is there. Now time's up. The correct answer is kite flying. Next question. This is the second last question of this quiz. And the question is, which color dress is worn during Makar Sankranti? Again, this is a very simple question. Orange color, yellow color, black color and red color. मकर संक्रांति के दौरान कौन से कलर के कपड़े
पहना जाता है? ऑरेंज, येलो, ब्लैक और रेड? 3, 2 and 1. Okay, the right answer is black color. Now, time for next question. Three, two, one, go. Makar Sankranti is a festival of music, festival of harvesting, festival of light या festival of colors? मकर संक्रांति किस चीज का पर्व है? म्यूजिक का, हार्वेस्टिंग का, लाइट का या कलर का? The correct answer is festival of harvesting. So the last question of this quiz is, in Bihar, Makar Sankranti festival is known as. बिहार में मकर संक्रांति फेस्टिवल को किस नाम से जाना जाता है? संक्रांत, खिचड़ी, बोथ संक्रांत एंड खिचड़ी या none of the above? Only one correct answer is there, so you have to choose very wisely. Okay, time's up. The correct answer is both Sankrant and Khichdi. Okay. Now all 10 questions are finished. The quiz finishes. Hope you are enjoying all the 10 questions on your screen. Am I audible? Yes, Indrajit, we involve a lot. Thank you, Diksha. Thank you very much. Thank you. My Thank network you so much, connection may be Indrajit. not supporting me. Thank you. No, you are completely audible. Don't worry. Thank you, Indrajit. That was really an interesting quiz. With this, we reached to the end of the program. I would like to admit my thoughts. A good event never ends in a world. They take only a pause and keep us waiting for the next. Thank you, everyone, for joining us and being with us. Have a nice day. Thank you to all, as this is my first event in that CCA activity. Thank you very much. Thank you all for the wonderful performance. Congratulations, everybody. Thank you, Each ma'am. and Thank you. every program was very, very good. So, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Wishing you all a very happy Makar Sankranti. Thank you, ma'am. Same to you. Same, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Special thank you to you, ma'am. आपने हेल्प करी क्विज बनाने के लिए, तो I that's was why I waiting for present the there. leaderboard. Where was it? Yes, ma'am, me too. Okay, don't worry, you will learn it.
Excuse me, ma'am, what shall we do now? Shall we leave the meeting and join for the class, or should we wait for someone? Yes, Neha, the event is wrapped up now. You can leave and join for the classes. Indrajit, I just wanted to, I will talk to you later regarding that, okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am.